सिनेरियो मैं आपको देती हूँ प्राइमरी एमेनोरिया का। निदा, अच्छा, पेशेंट इज 18 years of age, चलो 18 वाला भी रहने दो। पेशेंट इज 14 years of age and presents with a complaint of unable to menstruate till now, and also pain, severe pain, lower abdomen, cyclical lower abdominal pain. Okay, ma'am. How will you go ahead with her? Ji. Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Fatma. I have read the instructions and I am ready for the discussion. First of all, after introducing myself, I will take the detailed Good. history from my patient. I will ask that if she has her mother along with her, she can call her. Then I will start her asking detailed history. First of all, I will ask from her about any history of a headache, blurring of vision, and any nipple discharge, or any history of medication intake, and any excessive hair growth, acne, weight gain, and any long-standing cough with evening rise of temperature, and any history of weight loss, palpitations, sweating, and heat intolerance. And I will ask about from how long she is having this pain, lower abdomen, and any feeling of mass in the lower abdomen, and any associated urinary and bowel complaints, any abnormal vaginal discharge, and then feeling of any mass in the abdomen. Then I will also ask about the development of other secondary sexual characteristics, about her breast development, and axillary hair development, and pubic hair development. Then I will also inquire about from the patient any history of excessive weight gain or excessive exercise, stress, and if she is studying. And I will also ask about how is her education going, and how is her sleep, and any sense of smell, and how is her sense of smell. Then I will ask also from her that at what age her mother, and if she have had menarche, and if she had siblings, or especially in sister, I will ask about her age of menarche. Then I will further inquire on the rest of the history that will include any significant past gynecological history, any history of drug intake, her family history, any significant family history, and past medical and surgical history, and her socioeconomic status. Then I will do her examination, and my examination will include her general physical examination and specific examination. In general physical examination, I will I will check her BMI, will check her height, weight ratio, and will check her vitals, BP, blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, and any thyroid. Will do her thyroid examination, any abnormal nipple discharge, and then I will do her per abdominal examination and her pelvic examination. On the inspection, I will look for the development of the genitalia, and then I will also look for the any membrane bulging, to rule out the imperforate hymen, or any septum present. And I will also do her Tanner staging of breast development, and axillary and pubic hair development. ठीक है, गुड, तैयारी करके आए हो, वैसे अच्छी बात है, यू वर गुड। 60% वाला तो था, पर वही बात है कि 70% वाला हो जाए तो फिर तो कोई शक ना रहे कि 60% तो आ ही जाएंगे। लेकिन बुरा नहीं था, अच्छा था। देखो, वही बात है कि इस चीज को आप और अच्छा कैसे करो। आपने तैयारी की हुई है, यू हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स फॉर प्राइमरी एमेनोरिया एंड हिस्ट्री, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। मैम, आपका लेक्चर सुना था मैंने। चलो, थैंक यू। अच्छा, सो विच इज गुड। लेकिन अब देखो, मैंने तो आपको जब हिस्ट्री दी, हिस्ट्री खाली दी, हिस्ट्री भी क्या दी, सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताया, मैंने तो कुछ और बताया। लेकिन सॉरी, म्यूट करूंगी मैं। लेकिन सॉरी, कैसे यार, 1 मिनट में म्यूट कर दो सबको। ओके, सो प्रेजेंट इतना नहीं किया था। हाँ जी, तो जो है क्या कहते हैं, इस वजह से यू वर ऑल राइट। बट अब देखो, जो मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए थे दो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के लिए, उसी से ही हमें पता चल रहा था कि ये केस है इम्परफोरेट हाइमन का, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम का, 14 year old विद सिवियर साइक्लिकल पेन लोअर एब्डोमेन। आपकी हिस्ट्री एज अ होल बहुत अच्छी थी।
इसके अंदर अगर आप मतलब इसके अंदर आप यू शुड हैव एम्फसाइज्ड ऑन द पेन एंड द मैस एंड द साइक्लिकल पेन के साथ। पेन होता है जब इस तरह के, तो यूरिनरी रिटेंशन होते, पेन के साथ यूरिनरी बाउल सिम्टम्स, वो सारी चीजों पे आप जरा ज्यादा एक अलग ही बात अगर बोल दें तो और भी अच्छा। उसके अलावा ये सब तक क्या स्कैन हुआ है कि उसमें कोई मैस बताया, ब्लड इन द वजाइना बताया हुआ है, या हेमाटोमेट्रा बता दिया, या कुछ ऐसा। ऐसे पेशेंट्स में इवन हेमाटोसैल्पिंग्स तक भी बात पहुंच जाती होती है। तो वो, या फिर कोई कंजेनिटल यूट्राइन एनोमली भी बताइए, फिर आपको एक अंदाजा हो गया है कि ये केस from the presenting complaint कि this is going more towards the congenital malformation या फिर embryonic problem से related है, and you know कि kidney problems और skeletal problems इसके साथ होती हैं। तो अगर आप उसमें specially mention कर देते कि if she ever had got her KUB done, और उसमें क्या एक किडनी बताई है या कोई मेजर किडनी प्रॉब्लम तो नहीं बताई, कोई और बॉडी में स्केलेटल प्रॉब्लम तो नहीं है, सच पेशेंट्स में हैव एन एक्स्ट्रा फिंगर और एनी अदर स्केलेटल प्रॉब्लम, तो शायद फिर तो 70 मार्क्स हो जाते। तो बाकी तो ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री तो थी 60% वाली, लेकिन इसको और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए कि मतलब कि फिर कुछ भी ना रहे, क्योंकि इफ इट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द कंजेनिटल प्रॉब्लम, तो फिर आप उसके साथ एक दो बातें और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके आपकी थ्योरी का भी पता चलता है। एंड देयर इज नो हार्म कि यू गेट टू नो मोर अबाउट द पेशेंट। क्या पता आपको इसके कोई और टेस्ट भी कराने पड़े या कुछ और ऐसा करना पड़े। सो इस तरह की चीजें अगर ऐड हो जाए। उसके अलावा ये कि एग्जामिनेशन वाज गुड, कवर आपने सारे पॉइंट्स किए, लेकिन अगर आप, वही बात है कि एम्फसाइज करने वाली बात है ना, ताकि पता चले कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पेशेंट बट नॉट अबाउट प्राइमरी एमेनोरिया एज अ होल। तो अबाउट दिस पेशेंट के अंदर अगर आप बात स्टार्ट करते कि BMI में स्पेशली हाइट की बात कर देते कि इफ शी इज नॉर्मल हाइट या शॉर्ट हाइटेड पेशेंट, या फिर और फिर उसके बाद आप इसके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर आप बात थायराइड वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर आप टैनर स्टेजिंग से ही बात स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट की टैनर स्टेजिंग करूंगी, मैं प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की टैनर स्टेजिंग करूंगी, मतलब एक पैटर्न ऑफ सेइंग यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट देयर इज अ पैटर्न ऑफ कवरिंग एवरीथिंग इन अ स्पेसिफिक पेशेंट के आप एक्सक्लूसिवली इसी मरीज की ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आप फर्क कर सकते हो। और उसके अलावा ये कि बाकी इट वाज गुड व्हेन यू आर डूइंग जेनिटल एग्जामिनेशन। वो तो चलो एक अच्छी बात ये थी कि आपने शुरू से ही मदर को बुला लिया था, तो जेनिटल एग्जामिनेशन में आप ठीक है, आप बल्जिंग मेम्ब्रेन का आई डोंट नो आपने जिक्र किया है नहीं, तो इस तरीके से इम्परफोरेट हाइमन के बजाय अगर आप बल्जिंग ब्लू मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ हाइमन बोलो तो वो ज्यादा बेहतर है। और ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम जो है वो ठीक है, वो भी आपको नजर तो आ जाता है, बट हायर सेप्टम कई दफा नहीं भी नजर आता। सो इस तरीके से आप अगर बात करो तो वो और भी अच्छा। बाकी हिस्ट्री में तो यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, और आई थिंक इसलिए मैंने कहा कि था तो पासिंग वाला ही, बट इसको और बेहतर किया जाए तो ऐसे होगा। किसी और ने कुछ और ऐड करना है तो बताए, मैसेजेस में लोग चाहूंगी। आपने कहा है कि स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज का, तो वो मतलब पेशेंट से कैसे पूछेंगे, लाइक एनी एक्स्ट्रा आप, डिजिट? हाँ, कोई आपको बोनी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किसी ने कभी कोई बोन्स का कोई मसला तो नहीं बताया इस तरह से? और कभी किडनी का अल्ट्रासाउंड कराया आपने? कुछ आपको ऐसे तो नहीं कभी बताया, या आपकी मदर को पैदाइश पे आपका बताया हो कि 1 किडनी है? या कई दफा कुछ हॉस्पिटल्स में कंप्लीट वर्कअप होता है बच्चे का, या मोस्टली इफ अ पेशेंट हैज 1 किडनी दे नो दैट दे हैव 1 किडनी। सो आप उससे उनसे इस तरीके से आप पूछ सकते हो। ओके मैम, ठीक है, इससे तो बहुत ही जबरदस्त हो जाए बात, मतलब ये तो फिर सब कुछ ही कवर हो जाने वाली बात है। क्योंकि जो कंजेनिटल प्रॉब्लम वाले होते हैं, स्पेशली MRKH सिंड्रोम वगैरह, उसमें तो वो भी होता है ना, उसके अंदर तो 40% ये चीजें इन्वॉल्व है। तो एमेनोरिया का विद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जिसमें प्रेजेंट है, तो उसके DD में तो वो भी आ जाता है ना। और ठीक है, मैम इसकी एग्जामिनेशन में हम पर रेक्टम एग्जामिनेशन बोलेंगे अगर हमें हाँ, मतलब से गुड, इसमें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हेमाटोकॉल्पस कितना है या कहाँ तक क्या गया है। ओके मैम, ठीक है, चलो गुड। अच्छा, और किसी ने कुछ ये क्या और कुछ होता है ना? हाँ, वो हमारा काम नहीं है यार, वो जो स्कैन पे आएगा सो आएगा, होता है वैसे। और शू किडनी, अच्छा और बताए? ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस बता जल्दी से, निदा। मैम इन्वेस्टिगेशंस विल इंक्लूड हर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हम्म, एंड
specific investigations. In baseline investigations, I will do her complete blood count to check her hemoglobin, platelet and TLC count, and blood group and RH factor, and a urine complete examination to check for cells or proteins, and her hepatitis status for hepatitis B surface antigen and anti-HCV serology, and her blood sugar random as a baseline. And then in specific investigations, I will do her pelvic ultrasound to check for all the uterine dimensions, status of the ovaries, and I will do also her abdominal ultrasound to check for any associated Mullerian anomaly like pelvic kidney or anything else. ठीक है। स्पेसिफिक में आपने अल्ट्रासाउंड किया और क्या किया? मैम अभी तो यही किया है, क्योंकि मतलब जैसे लो एब्डोमिनल पेन है तो बाकी हार्मोन्स तो फिर हमें अभी मतलब नहीं चाहिए होंगे, फिर अल्ट्रासाउंड कोई और इन्वेस्टिगेशंस बताए? मैम MRI है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया। अच्छा, निदा वाज राइट, आपने बेसलाइन सारी बोल दी इसमें। यस, पेन लोअर एब्डोमेन है, उससे रिलेटेड यूरिन का तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया, बेसलाइन में भी बोल दिया था, चलो वो भी ठीक हो गया। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस भी कराओ और KU भी करा लो, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। KU भी हर एक में कराने की वैसे जरूरत नहीं है अगर अल्ट्रासाउंड आपका ठीक आ जाता है रिगार्डिंग यूट्रस एंड बाकी सारा कुछ। और अगर अब ये जो MRI वाली बात है, इसका जवाब ये है कि जब एग्जामिनेशन के ऊपर आपको बल्जिंग मेम्ब्रेन मिल गया है, यानी कि यू आर श्योर एग्जामिनेशन इज अ डायग्नोस्टिक फॉर imperforate hymen and you have now diagnosed a patient of having imperforate hymen, तो उसके अंदर further investigations regarding hormonal profile, MRI उसकी जरूरत नहीं होती। MRI उसके अंदर जरूरत होती है कि पेशेंट एग्जामिनेशन पे आपने डायग्नोस किया ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम का। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में फिर आपने आगे MRI कराना होता है कि वो लोअर लेवल है, हायर लेवल है, या वो क्या है। लेकिन इम्परफोरेट हाइमन विच इज ज्यादातर एग्जाम में इम्परफोरेट हाइमन ही आएगा, या आई डोंट थिंक सो कि ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, वैसे अब तो जिस तरह से पैटर्न है वो भी आ सकता है। तो उसके अंदर फिर आप जब वेजाइनल एग्जामिनेशन में जब आपको पता लगता है इंस्पेक्शन में कि वो इम्परफोरेट हाइमन, वो ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है, फिर आप MRI कराते हैं। किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे या नहीं। मैम अगर हम हिस्ट्री में मैंने सवाल पूछा था, मैरिड है मतलब, और के अलावा नहीं हो सकता? नहीं मैम, वैसे there is no harm. Reproductive age group 14 year is a borderline for that actually. लेकिन एक चीज और, अगर आपने एग्जामिन कर लिया और एग्जामिनेशन पे इम्परफोरेट हाइमन देख लिया है तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग बीटा HCG। अगर तो आपको इम्परफोरेट हाइमन या सेप्टम ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम नहीं मिला एंड यू हैव सीन अ वजाइना और एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द डायग्नोसिस एज सच, फिर आप फिर भी पूछ सकते हो प्रेगनेंसी टेस्ट का। लेकिन अगर आपको इम्परफोरेट हाइमन का डायग्नोसिस बन गया एग्जामिनेशन पे तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग बीटा HCG। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन। हाँ जी मैम, हाउ कैन वी, आवाज नहीं आ रही आपकी सामा में, अनम्यूट करें आप अपने आप को। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ प्रेगनेंसी बिफोर स्टार्टिंग मेनार्की? we can a girl can get pregnant even before the first period comes। ओवुलेशन तो हो जाती है ना, सबसे पहले ब्लीडिंग ही तो नहीं होती। जरूरी नहीं है कि उसको बहुत जो फर्स्ट उसमें होता है पीरियड्स आने से पहले ही अगर वो कंसीव कर गई है तो हो सकता है। वी कैन, ठीक है, चलो गुड। अब जल्दी से मैनेज भी कर दो निदा। कैरियर टाइपिंग इसमें नहीं करानी, जिसमें करानी है मैं आगे बताती हूँ। जी निदा। First of all, I will counsel the patient and her attendants regarding her the diagnosis and that she is having a primary amenorrhea, probably due to imperforate hymen. Then I will manage my patient in collaboration with multidisciplinary team and including anesthetist, senior gynecologist. And then after completing all her workup, I will after completing all her workup, I will during procedure I will give incision. We'll do incision and drainage with and we'll explain all the pros and cons to the patient and its attendants. नहीं ठीक है,
अच्छा, आपने कहा कि आई विल काउंसल। देखो अब 14 साल की बच्ची है या उसकी मदर साथ आई, वो एक काफी एंशियस पेशेंट आई है कि एक तो पीरियड्स क्यों नहीं आए उसको अब तक, दूसरी चीज ये कि इसे इतनी पेन क्यों है, द काउंसलिंग वाज नॉट इनफ। ठीक है, तो उसमें देखो जब पीरियड्स नहीं आते तो पेन के अलावा बड़ी टेंशन होती है घर वालों को कि इफ शी एवरीथिंग इज रियली ऑल राइट, इसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ठीक है क्या है नहीं है, एंड इट्स नॉट दैट probably due to imperfect hymen you have made the diagnosis, so it is due to imperfect hymen, and the word itself is not explanatory for any person, जो patient के लिए explanatory नहीं है। तो आपने बताना है कि it's an outflow tract obstruction, फिर बताना है कि it's a definitely it's a treatable condition, it's not a and not a major procedure needs to be done, वो सारी चीजें बताओ, और she will be treated, she will have periods, it's just the outflow tract obstruction, the hormones are all right, सेकेंडरी सेक्स। आपकी तो पहली लाइन में ही आपका जो है ना वो पास होता होता केस रह गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक 14 साल की बच्ची को जब मदर लेके आई है इस मसले के साथ, तो उसकी तो एंजाइटी क्या है, मतलब उसकी तो एक टेंशन है ना, शी वांट्स टू हेयर सो मेनी थिंग्स जो आपने बताना है आउटलुक, एंड व्हाट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, आप तो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हो, यस मल्टीडिसिप्लिनरी, आप कहो कि एनेस्थेटिस्ट को मैं इन्वॉल्व, इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी कई दफा जरूरत पड़ रही होती है ऐसे पेशेंट को, अगर आपने एमडीटी की बात ही करनी है तो गायनेकोलॉजिस्ट तो आप खुद ही हो। बहरहाल चलो वो सब करके और फिर आप मतलब इस चीज को आप और ज्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हो, किसी और ने बोले या नहीं दोबारा बोले। हाँ, ये नया ने ठीक लिखा चैट पे। अच्छा हाँ बताओ निदा, एक दफा फिर बता दो हमें, शाबाश। I will counsel the patient and her attendants empathetically, and I will explain the whole condition to the mother or her attendants that this is treatable cause and her rest of the hormonal profile is normal, and if when her the cause is outflow tract obstruction, and after a short procedure and short hospital stay, later on she can have normal her menstruation. And she वेरी गुड, वेरी गुड। इससे तो देखो अगर इस टाइम पे बेल भी बच जाए ना तो आपका पता चल गया कि यू नो कि आपने क्या मैनेजमेंट करनी थी पेशेंट की, मतलब आपने काउंसलिंग में ही एक लाइन में बता दिया कि अच्छा बेल तो ना बजे, मैनेज एंड तक हो जाए, लेकिन अगर बेल भी बच जाए तो आपके पॉइंट से पता चल रहा है कि यू नो एग्जैक्टली कि आपका माइनर प्रोसीजर है, जल्दी डिस्चार्ज करोगे मरीज को, मेंस्ट्रुएशन इसको आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद से और पेन सेटल हो जाएगी। चलो अब फिर बस बताओ फिर प्रोसीजर क्या करोगे। मैम इसमें वही यूजुअली करेंगे एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया और इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे जो भी अंदर कलेक्शन सही तरह होगी। बताओ ना, मैम बताइए क्या करेंगे आप, सही वो एग्जाम की प्रैक्टिस बताओ। Ma'am, I will manage my patient in collaboration and multidisciplinary team, and then I will, after completing her workup, I will shift the patient in the OT, and after following WHO surgical safety checklist, I will and making her position, I will give circular incision at the maximum bulge, and will do drainage. सर्कुलर, मैम वो मैम वो वर्ड होता है पता नहीं, क्रूशिएट, सॉरी क्रूशिएट, हाँ वो माइंड से निकल गया, सॉरी। क्रूशिएट का मतलब है क्रिस क्रॉस, जी मैम सॉरी, cruciate incision and will do क्रिस incision. क्रॉस। Okay ma'am, will do her incision and drainage, and I then I will keep the patient admitted and will look for post-op period. I will check her vitals and look for any abnormal bleeding, or I will give her बिल्कुल antibiotic. ठीक है, मुझे बता देता कभी किया ये प्रोसीजर या देखे, मैंने देखा हुआ है ट्रेनिंग में, मतलब ना खुद तो नहीं उसी किया। तरह बोलो जो देखे, पता चले कि आपने देखा है, आप वो चीज अपने दिमाग में लाओ ना, उसको पिक्चर को जो हो रहा है कि क्रूशिएट दिया तो उसके बाद क्या होगा, लॉट ऑफ ब्राउनिश मटेरियल विल कम आउट, पता चले कि आपने किया हुआ है डिपार्टमेंट में या नहीं देखा हुआ है। नहीं, ठीक ठीक है। है ना, मतलब वो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो जिसे कहते हैं ना फ्लेवर ऐड कर देना बात का, क्योंकि आपने वहां पे मैं हर क्लास में कहती हूँ कि टिपिकल कैंडिडेट इज नॉट गोइंग टू पास, जो थोड़ा कुछ अलग थोड़ा सा बन के बोले या थोड़ा सा उसके अंदर एक एडेड चीज हो ना, वो सोते हुए एग्जामिनर को भी जगा देता है कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रही है, इसने किया हुआ है, इसने एटलीस्ट देखा हुआ है, शी नोस के अब इसके पास ये मरीज क्लिनिक पे आएगी तो इसको एग्जैक्टली पता है कि उसको देख के कि ओटी में जाके इसके अंदर से क्या निकलने वाला है, राइट।
सो जब क्लिनिक में मरीज सामने बैठे आप उसको ओटी तक भी इमेजिन कर लेते हो कि अब इसके अंदर से ये मैंने कर देना है, राइट? तो बिल्कुल इसी तरह बोलो कि I'll give her a cruciate incision on the maximum bulge of the imperforate hymen and will let the brownish fluid come out. At times इतना ज्यादा brownish material भी निकलता है कि आपकी किडनी ट्रे पूरी पूरी भरना शुरू हो जाती है, मतलब 500 ml भी निकल आता है पूरा उसमें से। तो आप बोलोगे कि I'll wait till the maximum amount of brownish material comes out, और फिर बाद में जब पोस्ट ऑप में गई है तो that material will keep on coming out, ठीक है? और फिर आप उसे क्या एक्सप्लेन करके भेजोगे कि हफ्ते तक निकलेगा ये, जी मैम, ठीक है। ठीक है ना? तो ये आपने वो करना है, और फिर मंथली साइकिल्स इंशाल्लाह से आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपने करना है। और किसी ने क्या ऐड करना है इसमें? ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम होता तो क्या करते हैं? जल्दी से कर लेते हैं। वैसे अब जो एग्जाम सिनेरियो उसमें तो हर तरह का केस आ सकता है। हाँ नेता, इसी का ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम बताओ। मैम इन ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम मैम उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजाइनल सेप्टम, हाई वेजाइनल, मिड वेजाइनल एंड लोअर वेजाइनल सेप्टम। मैम इन अच्छा, लोअर एग्जाम में अगर कोई पूछे ना सिनेरियो बदल के, अब देखो Okay, मैंने सिनेरियो बदल के एकदम से कहा है कि किसी पेशेंट में अगर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम होता तो क्या होता, तो आपने खुद ही से इमेजिन कर लेना है कि इजीएस्ट वाला आपको सेप्टम पूछा गया। डोंट गो फॉर द बिगर थिंग्स के हायर हो, मिडिल हो या क्या हो। आप कहो कि अच्छा, इफ शी हैड द ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, द सेम वही सारा करके रीअसेस द पेशेंट, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके जब एग्जामिन करे होगे तो आई विल लुक के कौन सा लेवल क्या एज इट इज दिस लेवल, और फिर कंटिन्यू करो, ठीक है ना? ये तरीका होता है आसान वाइवा बनाने का, ताकि बात उस पे हो, खत्म हो, मरीज घर जाए। इसी तरह जैसे ऑन्कोलॉजी का पेशेंट है और वो कहते हैं कि अच्छा जी स्टेज 2 डिस्कस हो गई है, तो व्हाट इफ शी हैड कम एट सम अदर स्टेज, या फिर आपको वैसे ही कहते हैं कि व्हाट इफ द बायोप्सी हैड शोन द मैलिग्नेंसी, तो फिर क्या मैनेज करोगे? तो खुद ही कंसिडर कर लो कि इट्स द इजीएस्ट स्टेज, ठीक है ना? ताकि आपका मरीज जल्दी मैनेज होके घर जाए, इंस्टेड के बाद में कीमो रेडियो की बातें हो। मैम जैसे कि इसमें हमें लोअर और मिड वेजाइनल सेप्टम का बताना चाहिए। हाँ, तो आप इजीएस्ट आप कहो कि ऑन एग्जामिनेशन आई हैड सीन दिस, तो आगे बताओ। then after completing her workup गुड। and anesthesia fitness and counseling of the इसमें आप patient। एमआरआई करा सकते हो टू रिकन्फर्म जी कि मैम, सिस्टम कहाँ है, क्या है, कहीं ब्लाइंड वजाइना तो नहीं है या कुछ ऐसा। after confirming or making diagnosis at MRI, then I will shift the patient in operation theater, and for the vaginal septum, I will dissection is made from below, and if possible, the upper and the lower ends of vagina are brought together and गुड, stitched at the new vagina. बिल्कुल ठीक है, बस आसान काम है, इसमें कोई पार्शियल वेजाइनोप्लास्टी की बात या इम्प्लांट की बात हमने की नहीं। बिल्कुल ठीक है, निदा ने इजी करके खत्म कर दिया। और इसमें आप ये कह सकते हो कि ये अब क्योंकि हमने इम्परफेक्ट हाइमन को एकदम से ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में किया, तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गया प्रोसीजर, मतलब इट इज नॉट दैट इजी एज इम्परफेक्ट हाइमन। ये अब थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ना काम, ठीक है? तो वो इस तरीके से करोगे। मैम इसकी कॉम्प्लिकेशन जैसे वो रिट्रैक्शन है, वो मतलब उसका बता देंगे। वो अगर कोई पूछे तो ठीक है मैम। ठीक है। ओके। अभी ये भले जरा हम आसान सिनेरियो लगता है निदा के हिस्से में आ रहे हैं और मुश्किल तैयबा के हिस्से में आएंगे। हम पहले निदा वाले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद तैयबा से पूछते हैं। अच्छा, अब निदा अगर इसी पेशेंट को हम लेके चलें जिसके अल्ट्रासाउंड पे वो आपको दे देते हैं, इसको लोअर एब्डोमिनल साइक्लिकल पेन नहीं है, लेकिन शी हैज द प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है, द सेम 16-year-old girl, right? And on ultrasound there is there is an infantile uterus. एन इन्फेंटाइल यूट्रस है, ठीक है मैम। मैम देन मैम इन्वेस्टिगेशंस में मैं इसको बताऊं ना, क्योंकि हिस्ट्री तो सारी वही पॉइंट्स होंगे। एग्जामिनेशन में भी एक बात ऐड हो जाएगी ना कि ब्लाइंड वजाना है या मतलब वजाना है भी कि नहीं है, या क्या है, ब्लाइंड है, लेंथ कितनी है, वो थोड़ा सा। बट इफ शी इज अनमैरिड, नॉर्मली वैसे ये जो इस तरह की पेशेंट्स जितनी भी देखी है ना, वो आती हैं अर्ली मैरिज में, शादी के फौरन बाद, तो यू कैन डू द पीवी ऑल्सो। लेकिन चलो इफ शी इज अनमैरिड तो आप ज्यादा पीआर कर लोगे, वो नहीं करोगे। जी मैम।
एंड मैम ठीक है, इसके बाद के वो सारी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में जो जैसे आप बता रही हैं कि मतलब वेजाइना को हम देख लेंगे, देन आई विल डू अगेन इन्वेस्टिगेशन, बेसलाइन एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। और मैम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में अब हमारे पास आ जाएगा साथ कैरियोटाइपिंग। आई वुड लाइक टू नो द कैरियोटाइपिंग ऑफ द पेशेंट and the further management will depend upon the karyotyping. चलो And in the सेक्सी है 46XX and ma'am on ultrasound as you said that she has infantile uterus and if on examination there is blind vagina or absent vagina, then the most likely diagnosis is that she is having MRKH syndrome. गुड And ma'am आगे management में बता दूं? देखो ब्लाइंड पिचायरा का तो इतना ज्यादा वो उसमें नहीं आएगा, स्कैन पे भी चलो आप एमआरआई भी करा लो, उसमें पता चल जाएगा। इसके अंदर एफएसएच एलएच वगैरह कराएंगे? जी मैम कराएंगे, इसमें हार्मोनल प्रोफाइल भी करवाएंगे। ठीक है, कौन हार्मोनल कौन से? मैम सीरम एफएसएच कराएंगे, सीरम एलएच कराएंगे और सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन और एस्ट्राडायोल लेवल और मैम टीएसएच कराएंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल थायराइड थायराइड कराएंगे। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन क्यों कराएंगे? मैम हार्मोन मतलब बेसलाइन देखने के लिए उसकी। एस्ट्राडायोल क्यों कराएंगे? नहीं कराए। देखो एमआरकेएच की तरफ जा रहा है डायग्नोसिस, आपने हार्मोनल प्रोफाइल कराया, एफएसएच एलएच प्रोलैक्टिन थायराइड, ठीक है। You have examined the patient already, you know secondary sex characters are present, there is no hirsutism or anything. तो अगर secondary sex characters present है, FSH LH उसके चलो बाद में भी आते हैं बट ठीक आ जाते हैं, there is no point in getting the estradiol levels done, उसका नहीं होता फायदा। एंड देन द टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपने कोई फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स कैलकुलेट करना है या ये पेशेंट कोई हर्सिटिज्म का है या ये कोई और ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपने कैरियोटाइपिंग मैंने आपको पहले ही एक्स बता दी। जी मैम ठीक है। ठीक है, तो ये काफी महंगे भी होते हैं टेस्ट, इसकी जरूरत आपके डायग्नोसिस पे कोई ये फर्क भी नहीं लाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल लेवल। ठीक है जी मैम ठीक है। चलो अब इसको मैनेज करो एमआरकेएच को। Ma'am, I will consult the patient and attendants regarding her condition, and I will explain that to the patients and attendants that my management plan and the counseling that she can get married, but she cannot conceive, and and then ma'am for vaginal I will advise her to use सॉरी मैडम इसी में वजाइनोप्लास्टी वगैरह। सॉरी शोर हो रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया। हाँ जी कोमल प्लीज म्यूट करें अपने आप को। जी जी बोले, कोई क्वेश्चन कर रहा था, सापरा करी थी। मैडम मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें हम एग्जामिनेशन करने के बाद हम इसको वजाइनोप्लास्टी या प्रोसीजर ट्रीटमेंट तक आगे मैं लेके मैं बताती हूँ निता, पहले मैनेजमेंट बता देना फिर मैं बताती हूँ। जी निता। जी थैंक यू मैडम। Ma'am, I will tell her about the use of the vaginal dilators and early marriage, and if dilators fail in about 8 to 10 weeks, then surgical methods of vaginoplasty can also be used. अच्छा अच्छा इसका मैं आपको बात बताती हूँ। देखो ये जो एमआरकेएच है ना, इट्स अ वेरी बिग न्यूज फॉर द पेशेंट, बहुत ही बड़ी न्यूज है। एब्सेंट वजाइना एंड देन नॉन फंक्शनल यूट्रस। इसके अंदर तो पहली बात तो यही उसे बतानी है कि शी इज नॉट गोइंग टू मेंस्ट्रुएट, हाउएवर और हार्मोनल प्रोफाइल्स रिगार्डिंग ओवरीज आर फाइन। ठीक है, सिमिलरली हर वजाइना इज एब्सेंट, तो हार्मोनली secondary sex characters के हिसाब से she will be fine. She cannot give birth to children later on, and she can get married after vaginoplasty is done. She can perform normal sexual functions, but she can never conceive, right? और before marriage अभी से वजाइनोप्लास्टी हम नहीं करेंगे, आफ्टर हर मैरिज इज प्लान्ड, उससे कोई 2 महीने पहले या महीना पहले ही उसकी वजाइनोप्लास्टी करेंगे। वो इसलिए ताकि जब वजाइना क्रिएट हो जाए तो वो फंक्शनल रहे वजाइना इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, तो इसलिए तब वजाइनोप्लास्टी है। तो सो दैट द पेशेंट शुड नो दैट शी शुड मैरी अ पर्सन जिसको बच्चों का ना हो। इसके अंदर डोनर इसके अंदर सरोगेसी के बारे में क्या ख्याल है?
मैम मतलब इसमें आई विल टेल द पेशेंट दैट सरोगेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। ये नहीं हमने बातें करनी एग्जाम में, हमें नहीं पता हमारी सोसाइटी में, हमने तो मेडिकल ऑप्शंस पेशेंट को बतानी है ना। वो अगर कहेगी मैंने कराना है तो हम बताएंगे कि इट्स नॉट इन आवर लॉ, इट्स नॉट अलाउड इन आवर लॉ। बाहर के मुल्कों में होता है, आगे आप जाने, मतलब इट्स अ राइट ऑफ एवरी पेशेंट टू नो कि उसके लिए मेडिकल क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, सोसाइटी में है क्या नहीं है वो हमारा काम नहीं है। वो अगर अगर वो कहती है मैंने करानी है सरोगेसी या जो भी कराना है, तो आप उसे कहोगे कि इट्स नॉट अलाउड इन आवर लॉ हमारा। ठीक है, बाकी रिलीजन का वी कैन नॉट कमेंट बिकॉज हम कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, जौन सा भी रिलीजन फॉलो करे, वी आर द मेडिकल पीपल। तो रिलीजन जिसका जो है वो स्कॉलर अपने से पूछे जो अलाउड है नहीं है, दिस इज अ मेडिकल ऑप्शन विच इज अवेलेबल, तो वो ऑप्शन हमने बतानी है, बाकी मरीज की अपनी मर्जी। जी मैम। ठीक है, ठीक तो है इसी तरह ही बोलना है, तो अगर है ऑप्शन तो फिर बोलो। मैम, फिर उसके साथ एडॉप्शन का हम हाँ बताएंगे। हाँ बिल्कुल। देखो मैं पहले तो हम यही कह रहे हैं कि शुड मैरी अ पर्सन जिसके पहले ही बच्चों का इशू ना हो, और लेटर ऑन अगर शी हैज ऑलरेडी मैरिड टू पर्सन, अक्सर पेशेंट्स आफ्टर मैरिज जाती हैं ब्लाइंड वजाइना और इसके साथ, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वजाइनोप्लास्टी कर देंगे और अडॉप्शन कर लें या सरोगेसी की तरफ चले जाएं। यस मैम, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। गुड। सो ये था, ये MRKH भी बड़ा कॉमनली आ जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अभी तक कोई सवाल? फिर हम जरा तैयबा से सवाल करेंगे। मैम, इसमें ये मेरा ही क्वेश्चन है जिसमें ये मतलब अब ये प्रेगनेंसी का मतलब हमें था कि रूल आउट करना चाहिए, 14 इयर्स की है। तो मैम जैसे आपने ना अपने जो आपका मैंने प्रीवियस लेक्चर सुना ना, उसमें आपने बताया कि लाइक अगर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हुए हैं ना, तो हम्म। आप पूछना चाहिए सेक्सुअली एक्टिव वो है या नहीं। तो मैम हमें एग्जाम में फिर ये बोलना चाहिए, मतलब हिस्ट्री में जब हम पूछ रहे हैं पेशेंट से कि आई विल आस्क अबाउट आइदर शी इज नहीं, सेक्सुअली एक्टिव उसका और नॉट। इफ शी इज मैरिड तो फिर आप पूछोगे ना, अनमैरिड से नहीं पूछेंगे अगर क्लियर कट लिखा। अनमैरिड से नहीं पूछोगे, वो तो फिर अनएथिकल सा भी हो जाता है ना थोड़ा सा। जी मैम, ठीक ठीक है। है, चलो और कोई, फिर तैयबा को कोई सिनेरियो देते हैं। थैंक यू मैम। जी हाँ जी, ठीक है, गुड। सब तैयबा के पास आते हैं। जी तैयबा, जी कोई मैम। सिनेरियो है आपके पास मुश्किल सा? मैम अब तो मुश्किल ही रह गया सारा कुछ। अब तो मुश्किल ही रहेगी। नहीं, मुश्किल की बात नहीं है, देखो बात यह है कि एक आपके साथ कर लेते हैं हम, बहुत ही आसान। देखो असल में जो अब रह गए हैं वो वाइवे के लिए तो वो आसान है, डायग्नोसिस थोड़ा सा बनाना मुश्किल उसके अंदर हो जाता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, वो मैं आप लोगों को ना तरीका बताऊंगी। ठीक है। सॉरी भाई, भाई म्यूट कर लो। अच्छा जी, तो फिर शुरू करते हैं। जी मैम। एक सेकंड, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ जी ओके। 25 years of age, जी मैम। married for 2 years, comes with the complaint of, चलो unmarried अभी कर देते हैं। Unmarried comes with the complaint of unable to menstruate, and also on examination she has got good secondary sexual characteristics, and on karyotyping it's 46XY. ठीक है मैम। ठीक है, जी चल मैम। मैम इसमें अब वैसे रेलिवेंट ही पूछूं या ओवरऑल सारी पूछूं? मेरा ख्याल है इसने निदा ने तो काफी अच्छा जी कवर मैम, किया था, कर तो लिया जी। आप वैसे पूछ लो, अब इससे स्पेसिफिक पूछ लो बेशक। Okay. Assalamu alaikum. My name is Dr. Taiba, and as I have read the scenario, so I want further questions regarding this scenario. Whether okay, ma'am, carrier. Okay, if मैम कैरियोटाइपिंग पे XY है और मैम वो मेंस्ट्रुएट उसने नहीं किया ना मैम? मेंस्ट्रुएट नहीं किया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप्ड है, 25 ठीक है years मैम। of age है, लिविंग इन अ फीमेल रोल, अनेबल टू मेंस्ट्रुएट है, ऑन के और एग्जामिनेशन पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, बट कैरियोटाइपिंग में 46XY है। ठीक है।
मैम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो मैम इसमें फिर मैम इसकी तो इन्वेस्टिगेशन ही अब होंगी। पूछो। इसकी इन्वेस्टिगेशन मैम, चूंकि ये जो है इसका डायग्नोसिस मैम एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम बन रहा है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में मैम फिर हम इसकी करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे मैम। ठीक और है। इसके अलावा वैसे पहले मैम अगर हम एग्जामिन भी कर लें इसको, इसके देखने के लिए कि इसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आइदर फुली डेवलप्ड हैं या नहीं है, जो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर हैं वो स्कैंटी हैं या किस तरह के हैं, और उसके ऊपर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कोई मैच तो नहीं है। यही तो मैं उसके- चाह रहा, आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस पे आ गए हो। इसका तो हाँ, वैसे मैम। 5 अल्फा रिडक्टेस, मैं तो भी डायग्नोसिस ही बदलने लगी थी। इन्वेस्टिगेशंस मैम। कितनी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट था। जी जी मैम, और पर एब्डोमिनल शुरू से बताओ, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऐसे नहीं बोलना। Okay, I will examine the patient for the presence or absence of sexual secondary sexual characteristics. If these are present or not, I will do the complete TANF staging. I will see the scanty pubic hair or axillary hair, how much distribution is there, and I will examine the abdomen for any mass. I will also examine the Girion region for any palpable mass. Then I will also do the pervaginal examination to see the presence of genitalia, either it is of female type, male type, or hermaphrodite type. External genitalia. And external genitalia. Then I will proceed towards investigations. Good, better. ठीक है। Okay. और On investigations, I will do the ultrasound of the patient. On ultrasound, I would like to see the presence of uterus, presence of ovaries, or presence of any other positive feature. Very good. Okay. Ma'am, it's as in scenario, it has mentioned that karyotyping is XY. So I will then further. बहुत अच्छा कर रहे हो, घबराओ नहीं, अच्छी जा रही है। मुश्किल सिनेरियो है ये, लेकिन you're doing well। एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अब जो पैटर्न है इट्स गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए अब हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मोटे मोटे टॉपिक्स नहीं अब इम्पोर्टेंट। जी ओके मैम। मैम अब इन्वेस्टिगेशंस तो हो गई उसकी, अब अगर आप कोई पॉजिटिव पॉइंट बताती हैं। इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं मैम, उसके कैरियोटाइप तो सॉरी मैम, कैरियोटाइप उसकी पता है। आई विल डू दी हार्मोनल प्रोफाइल। गुड। Yes, ma'am. On hormonal profile, I would like to see the patient's FSH, LH, testosterone level mainly. Good. And if testosterone level is high, then it will lead towards the diagnosis of androgen insensitivity syndrome. और मैम इसके अलावा मैम अब और तो एस्ट्राडायोल मैम, टेस्टोस्टेरोन पे। चलो और बताओ, फिर अभी बताती हूँ। सो यू गॉट व्हाट कौन कौन से टेस्ट कराया आपने? टेस्टोस्टेरोन कराया, हार्मोनल, और क्या कराया? मैम मैं इसमें FSH, LH और मैम इसमें मैं AMH भी करवाऊंगी मैम। अच्छा ठीक है। और मैम मुझे तो यही अभी याद आ रहे हैं। और ठीक है। और एस्ट्राडायोल मैम, एस्ट्राडायोल भी। अच्छा ठीक है। और मैम अब चूंकि पेशेंट मेरे पास बिल्कुल मेरे सामने 25 ईयर की है, वरना मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ और दूसरे CAH को एक्सक्लूड करने के लिए। एम्बिगुअस जेनिटलिया तो है ही नहीं, वो तो फीमेल है टाइप ही नहीं ना। जी मैम, तो बस मैम मुझे तो भी यही बड़ा लग मुश्किल रहा है। सिनेरियो दिया मैंने। मैम मुझे तो ये याद अच्छा आ रहा नहीं, है। बहुत अच्छा, गुड, सही जा रहे थे। अच्छा, जब हार्मोनल प्रोफाइल मांग रहे हो तो खुद से पोंगिना ना मारो कि टेस्टोस्टेरोन, वो क्योंकि पोंगी आपसे गलत मारी गई है। ठीक है मैम, ठीक। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का मतलब ये है कि पेरिफेरी में रिसेप्टर्स नहीं है। जी, लेकिन हार्मोन है। ठीक है। हाँ, लेकिन हार्मोन तो नॉर्मल है। उसकी जी। उस रिसेप्टर्स के ना होने की वजह से कोई हार्मोन्स तो ज्यादा नहीं बढ़ते ना, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उसमें नॉर्मल आएगा। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है।
टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा आता है उसमें 5 अल्फा रिडक्टेज में। 5 अल्फा, ठीक है मैम जी। लेकिन ठीक है मैडम ना? ये मेल का लेवल नहीं आएगा टेस्टोस्टेरोन का, फीमेल में कम होते हैं। हाँ, इसके अंदर अच्छा चलो, बिकॉज कैरियोटाइपिंग इज XY ना, तो मेल जी। के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आएगा, जी लेकिन बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन के पेरिफेरी पे इफेक्ट्स नॉर्मल नहीं आएंगे। और जो मैं 5 अल्फा रिडक्टेज कह रही हूँ उसमें टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन इज टू डीए, जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रेशियो ज्यादा आएगी। टेस्टोस्टेरोन विल बी हाई, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन विल बी लो 5 अल्फा रिडक्टेज में। उसके अंदर फिर आप दोनों टेस्ट कराते हो। उसके अंदर एग्जामिनेशन में एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, Yes, ma'am. क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है ना? Yes, ma'am. जी। और जब 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी वाला पेशेंट होगा तो उसके अंदर एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे और टेस्टोस्टेरोन इज टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स रिवर्स आएंगे, यानी कि ज्यादा हो जाएगा रेशियोस का। Yes, ma'am. ठीक है? जो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आएगा। देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स डन बिकॉज द जेनिटेलिया नॉट एम्बिगुअस, वो तो वैसे ही फीमेल टाइप जेनिटेलिया। ठीक है ना? Yes, ma'am. एक निशानी है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी के पेशेंट की कि वो एक इंतहाई खूबसूरत लड़कियां होती हैं। Yes, ma'am. They are beautiful girls with a very nicely developed secondary sex characters and normal external genitalia. No one in the world can even think that the karyotyping is going to come out to be 46XY. Yes, ma'am. ठीक है? तो जी इस और उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी होती है एज अ फीमेल कैरेक्टर। ठीक है? एज अ फीमेल जेंडर। और एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया की वजह से जब होते हैं, बट इस केस में फिर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू नीड टू सी कि कोई रेजिडुअल टेस्टिस तो नहीं अंदर रह गई या Yes. कुछ और इस तरह तो नहीं है। ठीक है? Yes, ma'am. और इनके अंदर इसका डिफरेंस विद स्वायर सिंड्रोम कैसे होगा डायग्नोसिस में? मैनेजमेंट तो इन पेशेंट्स की इतनी मुश्किल नहीं है, बोलनी शायद करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में बोलनी मुश्किल नहीं है। इसकी तो काउंसलिंग ही बहुत ज्यादा, आप एक जेंडर ही बदल दो पेशेंट का तो क्लिनिक पे बैठ के इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट एग्जाम में बोलना इतना मुश्किल नहीं है। डीडी के अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज आ रहा था, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी और स्वायर सिंड्रोम आ रहा था। स्वायर सिंड्रोम से कैसे फर्क करेंगे? Ma'am. बहुत ही आसान फर्क है। टेस्टोस्टेरोन मैडम वेरिएबल होगा। मैम ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते इस वजह मैम उसमें यूट्रस होगा, स्वायर सिंड्रोम में यूट्रस। यस यस यस, कौन बोला? तैयबा बोली। मैम तैयबा जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस में होगा यूट्रस? स्वायर में यूट्रस मौजूद होगा। अरे एक मिनट, मैं साइलेंट पे करूं सबको, इतना इंपॉर्टेंट ये बात है। म्यूट कर दूं ना? अब तैयबा अपना अनम्यूट आप करेंगे। जी। हाँ बताओ। इसकी ना पैथोफिजियोलॉजी में जाना है आपने हर चीज के, फिर यू विल नेवर फॉरगेट कि आपने डीडी बहुत असल में ये डीडी इस तरह का केस आएगा ना, उसमें मेन चीज ही डायग्नोसिस है। तैयबा वो सेइंग राइट, पता नहीं अब अनम्यूट क्यों हो गई है, अपने आप म्यूट क्यों हो गई है? जी मैम जी मैम वहां हाँ से हो बताओ गई थी। क्या फर्क है? मैम स्वायर में ही जो है वो यूट्रस मौजूद होगा, क्योंकि स्वायर सिंड्रोम में जो है वो जो मुलरियन मुलेरियन, हाँ, एजेंसी है, मुलेरियन एजेंसी इनहिबिटरी वो सब्सटेंस। कंप्लीट नहीं होती है, वो यस, कंप्लीट नहीं होती। देखो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्वायर सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी है SRY जीन डिफेक्ट। जी मैम। जो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी की पैथोफिजियोलॉजी है वो 5 अल्फा रिडक्टेज की कमी है। ठीक है? यस मैम। जिसकी वजह से DHT नहीं बन रहा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं बन रहे। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी की पैथोफिजियोलॉजी है कि पेरिफेरल रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है और इस वजह से टेस्टोस्टेरोन का पेरिफेरी के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा, इस वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स फीमेल टाइप और टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं आया। इसलिए जो स्वायर सिंड्रोम है उसके अंदर SRY जीन डिफेक्ट है। SRY जीन डिफेक्ट से क्या होगा? जो मलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है और साथ में जो के एम्ब्रियोलॉजिकली यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज को बनाने से रोकता है, वो नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह की पेशेंट 46XY भी होगा, बट at the same time that patient will have uterus tubes ovaries present as well. Yes मैम। यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज 5 अल्फा रिडक्टेज में भी नहीं प्रेजेंट होंगी नहीं क्योंकि होंगी। मलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर होगा मौजूद। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में भी नहीं होंगी क्योंकि MIF मौजूद है। लेकिन स्वायर सिंड्रोम के अंदर अल्ट्रासाउंड में आपको यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज मिलेंगी। Yes, तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी के अंदर, हाँ
एक्सक्यूज जी मी मैम, ये हाँ इसमें तो बोलिए। गोनेडल डिसजेनेसिस होगी ना, ट्रायल सिंड्रोम में इसके गोनेडल अंदर और भी डिस। बड़ा कुछ होगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके अंदर जेनिटेलिया भी एम्बिगुअस हो सकते हैं। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल वेरिएबल होगा, ठीक है। इसके अंदर ब्रेस्ट एब्सेंट होएगी। कोई बोल रही थी बातें, लेकिन मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, वहां से आप शुरू करो जी मैम, बताना। यूनिट तो एंड एक रीजन। क्विकली मैं आपको डीडी में इनके फर्क बता देती हूँ। जो 5 अल्फा रिडक्टेज है उसके Excuse me, अंदर ma'am. आपको, हाँ जी निदा पूछे। हाँ नहीं मैम पूछना। ये सारी चीजें इतनी मिक्स होती हैं, तो हाँ, हम इसे किस तरह मेक अ टेबल, डिफरेंशिएट? मेक अ टेबल, ये टेबल बनाओ। कैरियोटाइप, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिक, मैंने वैसे बनाया हुआ है। आई ट्राई टू शेयर। और वो फिर आप लोग देख सकते हो, और फिर उसको चाहे याद कर लो या जो भी इस तरह से कर लो, मैं शेयर कर दूंगी आपको। मैम प्लीज शेयर कर दें, ये बहुत टफ लगता है हमें याद करना, वो भूल ये जाता है, चीजें मिक्स बहुत हो जाता चलो मैं शेयर कर दूंगी, कोई अच्छी राइटिंग में या टाइप हुआ हुआ ना, मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास होगा टाइप। डॉक्टर रूबा, थैंक यू मैम। एक बात जरा पूछना चाह रहे थे कि जैसे अब क्लिनिक पे कोई पेशेंट इस तरह आई है और हम उसे कैरियोटाइपिंग का कह रहे हैं और वो XY आ गई है और शी इज प्रेजेंट विद द हस्बैंड, तो मतलब ये कैसे एक्सप्लोर करें उस चीज को कि तुम मेल हो या क्या, बड़ा मतलब। कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि देखो हस्बैंड का भी पूरा राइट है दैट द हस्बैंड शुड आल्सो नो, नॉट ओनली जेंडर के हिसाब से बट प्रेगनेंसी एंड ऑल, लेकिन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। तो पहले तो आप पेशेंट को ही अंडर कॉन्फिडेंस लोगे कि हाउ टू डिक्लेयर एंड हाउ टू डू दैट ऑल। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट, अगर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का कहते हैं तो सबसे पहले तो वो दैट कम्स फर्स्ट, एंड देन पेशेंट इज द वन हु इज गोइंग टू डिक्लेयर दैट। मैम मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उसको जो है ना वो शी वाज एट द एज ऑफ 30 इयर्स और उसको जो है ना उसके FSH रेस था और वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे फलां डॉक्टर ने कह दिया कि तुम तो बूढ़ी हो गई हो। तो मेरे हस्बैंड साथ बैठे हुए थे और वो उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया एंड ही इज ट्राइंग टू मैरी। तो वो बड़ा मतलब डॉक्टर को बुरा भला कह रही थी कि उसने डॉक्टर के हस्बैंड के सामने इस तरह से क्यों नहीं एक्सप्लोर किया। देखो, एकदम इसलिए से नहीं, बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली देखो, अगर पेशेंट का जेंडर ही चेंज हो गया तो वो फिर खुद तो बता ही देगी। बट द थिंग इज के सबसे पहले तो पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी और पेशेंट को बताना सबसे इम्पोर्टेंट है ना, उसके बाद आप फर्दर आगे लेके चलते हो चीजों को। तो अगर वो पेशेंट हस्बैंड के साथ आई है तो हम उस वक्त उसे एक्सप्लोर ना करें, बाद में उसको बताएं। बाद में भी क्या बता कहना सकते चाहिए हैं, एग्जाम में, आप क्या ये भी कहना कर चाहिए सकते हो। अगर इस तरह का सिनेरियो आए तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर आप पेशेंट को ही पहले बताओ। ठीक है। पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तो सबसे पहले आती है ना। मैम रूबा, एक क्वेश्चन मेरा है। हम्म मैम जैसे ये टर्नर सिंड्रोम है या फिर ये जैसे MRKH है, इनमें जब हम पेशेंट को इनफर्टिलिटी वाली ऑप्शंस दे रहे होते हैं तो उसमें हम क्या एग डोनेशन का जिक्र कर सकते हैं? एग जैसे तो वो टर्नर अपना ही सिंड्रोम। होगा ना, सरोगेसी होगी। नहीं मैम, ये टर्नर सिंड्रोम में स्टिक ओवरीज होती है ना, हाँ तो हाँ, उसमें हम टर्नर में कर सकते हैं जिसमें MH नहीं है। मैम उसमें एग डोनर एग डोनेशन। से वो HRT से उसकी एंडोमेट्रियम बनाएंगे, जी और उसके बाद डोनर एग से बिल्कुल। पर नहीं नहीं मैम, ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये करना चाह रही हूँ कि हमारी जैसे हम तो मुस्लिम्स हैं ना, तो हम मतलब एग्जाम में ये कह सकते हैं कि क्योंकि डोनर एग तो अलाउ नहीं है इस्लाम में ना। देखो, हम डिक्लेयर कुछ भी नहीं करेंगे। कितने जरूरी तो नहीं हर कैंडिडेट ही मुस्लिम हो, या हर एग्जामिनर ही मुस्लिम हो, या हर मरीज ही आपके पास मुस्लिम आ रहा है। व्हाट वी नो इज दैट इट्स नॉट occurring in our country because it's not allowed in our law, right? And the law मतलब is implemented to Muslim or non-Muslim everyone, right? So we are not doing in our country because it's not allowed in our law. It's not legal. When you are sitting in a clinic and you are dealing with a patient, you are not a Muslim or you're not a non-Muslim or you're not nothing else. हमने मेडिकल बताना है और हमने अपने लॉ को फॉलो करना है, राइट? तो ओके, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। हमारा लॉ अलाउ नहीं करता। रिलीजन आपका, आपके रिलीजन में जो है, यू कैन आस्क फ्रॉम द रिलीजियस स्कॉलर, एंड यू इफ इट्स अलाउड इन द रिलीजन यू आर फॉलोइंग, यू कैन गेट इट डन फ्रॉम एनी अदर कंट्री वेयर द लॉ अलाउस। दैट्स इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर रूबा, ये वहां पे बैठ के इनफेंटाइल आपने तो नहीं कहना, अब वो पता चले मरीज मुसलमान ही नहीं है, वो कहे अच्छा तो ये मतलब या क्या पता डॉक्टर जो है, या मैं मुझसे कितने कैंडिडेट्स, इट्स नथिंग अबाउट बीइंग मुस्लिम और नॉट, इट्स अबाउट द मेडिकल थिंग एंड इट्स अबाउट द लॉ।
राइट। हमने मेडिसिन और लॉ को मिला के फॉलो करना है, इधर बैठ के ऑप्शन उसे बता देती हैं, बाकी वो खुद सर्च करे, रिलीजियस स्कॉलर से पूछे अपने, जैसे होता है। इफ इट इज अलाउड देन शी कैन गो एंड गेट इट डन फ्रॉम एनी अदर कंट्री वेयर द लॉ अलाउज। डॉक्टर अरूबा, मैंने कुछ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं, जैसे इन्फेंटाइल यूट्रस है तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी हुई होती हैं, तो उसमें क्या, उसका क्या रोल है? क्या क्या होता है इन्फेंटाइल जैसे यूट्रस में? इन्फेंटाइल यूट्रस में ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी होती हैं, कई डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं। क्यों? मतलब उसमें उसका क्या रोल है? वो तो क्या करेगा वो? नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो कुछ रिकमेंडेड, नहीं करेगा। क्या वो बिल्कुल साइज भी को नहीं। बढ़ा सकता है? वो तो कंजेनिटल डिफेक्ट है। साइज बढ़ा के क्या करना है, वो मेंस्ट्रुएट तो करेगी नहीं, वो हाँ, नॉन फंक्शनिंग यूट्रस है। नॉन फंक्शनिंग है, पता नहीं क्यों लिखे हुए होते हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल इसके ट्रीटमेंट में नहीं आता। और बताओ। डॉक्टर रूबा, हेलो जी सिद्रा। मैडम, ये बता दें रेक्टल एग्जामिनेशन मांगनी है एग्जाम में इंटरपोलेटेड हार्मोन का, अगर केस हमें लग रहा है तो आपने बोला करना है ना एग्जामिन, बिल्कुल। बोलते हैं ये यंग गर्ल्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है, तो नहीं मांगो। मांगने की बात नहीं है। देखो आपने, इट्स अबाउट एम्बैरेसिंग और नॉट एम्बैरेसिंग। एक तो विजाइनल तो हम कर नहीं रहे, दूसरा ये कि रेक्टल कर रहे हैं, तो it's a part of the examination and it's going to be done in the presence of mother and a physician will be doing। आप कर रहे होगे उसको, तो जेंटली करो, उससे बहुत फाइंडिंग्स पता चलती हैं। इट्स अ पार्ट डॉक्टर ऑफ द रूबा, एग्जामिनेशन। विजाइनोस्कोपी का रोल है इसमें? विजाइनोस्कोपी जैसे हिस्टेरोस्कोपी या विजाइनोस्कोपी नहीं, ईयूए करके अगर हम उसको कर नहीं, दें, कोई जैसे रोल नहीं है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, शेपरॉन का इसमें प्रेजेंस जरूरी, प्रेजेंस ऑफ शेपरॉन हाँ, फॉर अनमैरिड जब एग्जामिनेशन? बच्ची टीनेजर बच्ची अनमैरिड है, उसमें तो मदर, अगर मदर की प्रेजेंस में ही करोगे ना। ठीक है, तो बात यही है कि इट्स वेरी थ्योरेटिकल। ये जो स्पेशली ये जो XY XX सिंड्रोम वाले प्रॉब्लम्स है, हर्माफ्रोडाइट्स, इंटरसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं, दीज आर मोर थ्योरेटिकल। और इसके अंदर फिर ट्रीटमेंट के अंदर हमें पता ही है कि आप उसकी गोनेड्स ठीक, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ठीक कर सकते हो, गोनेडल रिमूवल, और उसके बाद इफ शी ऑप्ट्स फॉर अ फीमेल रोल तो गोनेडल रिमूवल और जेनिटेलिया रिपेयर करोगे। और इसी तरह मेल रोल के लिए भी फिर उसे आप या तो टेस्टोस्टेरोन दोगे, फिर उसकी मिस्टेक्टमी, बट दैट्स अ बिग थिंग टू डू, सो बेटर वो Yes, ma'am. फीमेल रोल में जाते हैं Female पेशेंट। ही ma'am. बट आई हैव सीन अ पेशेंट जो कि जिसने मेल रोल को ऑप्ट किया था। She had lived her life as a female and she opted for the male role, और फिर mastectomy होती है and then we refer her to the plastic surgeon for the gonadal reconstruction। तो वो सारा कुछ आप करते हो। और अगर इसी तरह ये जो थोड़े से वजाइनोप्लास्टी के प्रोसीजर्स के नाम आने चाहिए आपको, फॉर द मार्केट सिंड्रोम, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायलेटर्स टू विलियम्स एंड टू मैकिन्डो, वो सारे आपको आने चाहिए। और इनका डीडी आना चाहिए, ये जो कैरियोटाइपिंग वाले हैं। लेकिन ये डीडी याद करना बहुत आसान हो जाता है वंस यू नो द पैथोफिजियोलॉजी। Yes, ma'am. मैम अभी ये आपने किया, मैंने पता नहीं कब का ये पढ़ा था और ऐसे यू वर गुड, मुझे यू वर गुड। सबसे जो कॉमनेस्ट है वो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी ही आता है अगर आए एग्जाम में, लेकिन मुश्किल बनाना तो स्वेयर सिंड्रोम भी आ सकता है। 5-alpha रिडक्टेज कम ही सुना है, लेकिन ये दो आ जाते हैं। मोस्टली एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी, उसकी निशानी मैंने आपको बता दी है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीमेल। मैम 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी तो मोस्टली फिर एट बर्थ भी पता चल जाते हैं ना, क्योंकि एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, और मैम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो कंजेनिटल जाता है। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला, 5-alpha रिडक्टेज में तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा। यस मैम, ठीक है, और बताओ। और मैम फिर ये मैनेजमेंट है मैम? हाँ, मैनेजमेंट चलो आप बता दो, फिर हम जी मैम, after counseling the patient that genetically she has gotten the genotype of a male, but phenotypically she is female, and so
after involving multidisciplinary team and psychologist and psychiatrist and briefly with good counseling of her, that she has not gotten uterus and other female genital इसमें tract साइकोलॉजिस्ट भी organ. इन्वॉल्व करते हैं. Yes, ma'am, psychologist भी. So she cannot menstruate or cannot able to conceive. So मैम बस इसी तरह. और 5% हाँ, तो मैम फीमेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट जेंडर शी वांट्स टू कंटिन्यू. then we will discuss with the patient that what gender she wants to be Genotypically, she's a male actually. So what gender she wants to continue. continue. And obviously better and the better treatment and easier one is to continue as a female role. अब तक वो as female ही रही है, तो अब आगे भी female कर, उसके लिए gonadal removal होगा और genitalia का repair होगा. And HRT मैम after gonadectomy भी ना मैम HRT. HRT जो है आप देने के, जब वो तो पहले ही सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स उसके बने हुए हैं, तो लेकिन मैम वो बोन के हेल्थ के लिए और हाँ इस वो तरह सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल. लेकिन मैम ये ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट तो नहीं होती, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन. पेरिफेरल जो है जैसे इसके अंदर रोमाटाइजेशन HRT कहीं पे है नहीं लिखा हुआ, सही कह हाँ, रही हैं. क्योंकि इसमें तो ईस्ट्रोजन अच्छा, डेफिशिएंसी ठीक. नहीं होती, क्योंकि ईस्ट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है इन बॉडी. हार्मोन तो है तो मैम वो पेरिफेरी एस्ट्रोजन से ही मैम, यानी कि उसका ठीक रहेगी वो हाँ, जो पेरिफेरल. फ्लायर में देंगे HRT के नहीं, मुश्किल सवाल है. मैम फ्लायर में तो ओवरीज बता. मौजूद है. हम देंगे मैम उसमें तो स्वायर में देंगे मैम, स्वायर तो होता है. ईस्ट्रोजन ही नहीं है, उसमें देंगे. एक बार फ्लायर में ओवरी नहीं मौजूद, उसमें देंगे. फाइव में भी देंगे, 5 अल्फा रिडक्टेज में भी देंगे, सिर्फ ये इसमें नहीं देंगे. और मैम टर्नर में भी देंगे. स्वायर में टर्नर convert उस तरह से देंगे. बिल्कुल गुड. और ठीक है, मैडम चलो गुड. लेकिन एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में जब आप गोनाडेक्टमी कर देते हैं तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल तो सिर्फ हमारे पास एड्रीनल सोर्स रहता है. यस मैम एंड्रोजन टेस्टिस तो निकाल दी तो के बाद sensitivity सोर्स रह गया है. गोनेडेक्टमी के बाद इसके अंदर देखो मैं बताती हूँ. जो है ना एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी वाला, उसमें अगर फीमेल रोल में उसने लिया है, जो तो पेशेंट बिफोर प्यूबर्टी आ जाते हैं और उसके अंदर आपने गोनेडल रिमूवल कर दिया हुआ है, तो प्यूबर्टी के वक्त आप उसको ईस्ट्रोजन और HRT देते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. यस मैम. लेकिन उसके बाद वंस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड, फिर आप HRT कंटिन्यूसली नहीं देते. जो पेशेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी एंड आफ्टर अटेनिंग द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं और उसके अंदर आपने गोनेडल रिमूवल किया है, तो टेस्टोस्टेरोन तो रिमूव हो जाता है, वो हो जाता है, टेस्टिस तो रिमूव हो जाती है, लेकिन उसके अंदर बाद में HRT देने की जरूरत नहीं होती. ठीक मैम, क्योंकि मैम वो तो हमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए चाहिए और बाकी बिकॉज आप लाइफ लॉन्ग HRT उस तरीके से रिकमेंडेड उस तरह है नहीं. स्वायर के अंदर आप दे रहे होते हैं क्योंकि आपके पूरी तरह सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी नहीं बने होते, उसके अंदर एम्बिगुअस होता है, वेरिएबल होता है, ब्रेस्ट एब्सेंट होती है. ठीक है ना? आई होप आप समझ आ गई. मैम जी मैम वो नेक्स्ट क्लास मैथ्स एब्डोमेन पे कर लें, 23rd को हमारा एग्जाम है, तो वो तो जरूर. आएगा इंशाल्लाह कर लेंगे. ठीक है मैम, थैंक यू. You're welcome. मैडम हेलो जी मैडम, ये मोज़ेक टर्नर का थोड़ा सा बता